In today's lecture, we are starting with 6.2 biomolecules in the cell. In that, D nucleic acid. All you know that nucleic acid in our body, it is of two types. That is deoxyribonucleic acid DNA and ribosomal nucleic acid RNA. So in this lecture, we will study about a structure of nucleic acid, that is the structure of DNA in our body and structure of RNA in our body, their function, characteristic, and different type of RNA and their function. Okay. So in today's lecture, we will see about a nucleic acid. So about the discovery, now there is a scientist, Swiss biochemist, that is Friedrich Miescher, in 1869 discovered an isolated nucleic acid from the first cell. मीन्स अगर हमको कहीं पर भी लग रहा है तो वहां पर जो भी व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, दैट इज नथिंग बट अ पस, और ये पस के अंदर से उस साइंटिस्ट ने क्या किया है, तो देयर विल बी अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुआ. नाउ इन 1938 it becomes evident that nucleic acid it is of two types, that is DNA, deoxyribonucleic acid, and the RNA, that is ribosomal nucleic acid. And so whatever today we know that in our body there is a two type of nucleic acid, that is a DNA and RNA, ये discovery 1938 में हुआ. Okay, now the next part. Now what's the function of a DNA in our body? So DNA is found in chloroplast. You know that प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एनिमल और प्लांट सेल और सभी सेल के अंदर जो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है. नाउ डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल? So you know that आनुवंशिक, the transmission of character from one generation to next generation. किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इट एज अ हेरिडिटरी मटेरियल. ओके, सो डीएनए इज अ वन टाइप ऑफ मटेरियल व्हिच विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अगर वो मेल कैंडिडेट है तो उसके स्पर्म से ट्रांसमिट होगा चाइल्ड के अंदर. इफ इट इज अ फीमेल कैंडिडेट तो वहां पर ये किससे ट्रांसमिट होगा? सो दैट विल बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ egg. Okay, DNA transfer. Now the next one. Nucleic acid are among the largest of all molecules found in living. So अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे, दैट इज द एंजाइम्स हमको देखना है, प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा. सो इन दैट ऑल ऑफ दैट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चरली बहुत ही लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, तो वो एक पार्ट दिया है. नाउ दैट nucleic acid contains three type of molecules. The first one, pentose sugar. You can see that this one is a 5 carbon pentose sugar, 1, 2, 3, 4, 5. Now after that, the second thing is phosphoric acid. You can see that the 5th number carbon पे pentose sugar के क्या अटैच है? phosphoric acid का ग्रुप अटैच है. and the first one number carbon पे क्या अटैच है? nitrogen base. So these are the different type of nitrogen bases are present in our body. Just a minute. Okay. Now the next part. These three are joined together to form a nucleic acid of nucleotide of a nucleic acid. Means अगर पेंटोस शुगर को फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस और 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हो गया, सो आफ्टर दैट ये तीनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, this is called it as a nucleotide. Okay, so this is called it as a nucleotide, and so many nucleotide are joined together to forming a nucleic acid. यानी कि बिगर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसको बोलना है न्यूक्लियोटाइड. Now the next part, scientist Fulgen in 1924 show that chromosome contain DNA. So in our body that chromosome consists of DNA. Chromosome यानी ही क्या है? DNA है. He established that nucleic acid contain a 2 pyridine, that is cytosine and thymine, and 2 purine, that is adenine and guanine. So हमने देखा कि जो पेंटोस शुगर होता है इसके फर्स्ट वाले कार्बन पे इसका अटैचमेंट होता है
so there is the attachment of a nitrogen, and this nitrogen base are two type. एक जो है pyridine, pyridine के अंदर दो टाइप के है, that is cytosine and guanine वाला, thymine वाला है, and purine के अंदर दो टाइप के है, that is adenine और guanine वाला nitrogen. Now the next part, Wilkins and co-workers show that the purine and pyridine bases are placed regularly among the DNA molecule at a distance of 3.4 angstrom unit. Now you can see that यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, so you can see that adenine के बाद में adenine है, फिर thymine है, means in a nucleotide, okay, in a DNA and RNA. न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टैंड होता है, उसके अंदर ये जो हम लोग बेस बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजन बेस है, ये वन आफ्टर अनदर क्या होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. यहाँ पर ग्वानाइन है, फिर एडेनाइन है, फिर उसके बाद साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे अलग अलग टाइप के बेस है. एंड इन बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, बट उसको अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, यहाँ पे नैनोमीटर में है इसलिए 0.34. नैनोमीटर जो भी है ये थोड़ा सा बिगर यूनिट में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम और थोड़ा स्मॉलर है, यहाँ पे इसीलिए 3.4 है और ये वैल्यू यहीं पर 0.34. Now we will proceed with the next part, that is about a DNA. Now the DNA is consist of three molecules. Now the DNA consists of the first one, sugar molecule, which you can see that. So DNA के अंदर जो sugar है, that is a pentose sugar, but deoxyribose. What is the full form of DNA? Deoxyribose. DNA, deoxyribose. Now what's the meaning of that? So deoxyribose type of sugar is present. It is also a 5 carbon. देखो जो RNA है वहां पर भी शुगर 5 कार्बन है, DNA के अंदर भी शुगर 5 कार्बन है, बट DNA के अंदर जो शुगर है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है. तो यहाँ पर जो शुगर है 5 कार्बन है, बट इट इज डीऑक्सीराइबोज, और RNA के अंदर राइबोज है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द फॉस्फोरिक एसिड. यू कैन सी दैट जो 5th नंबर कार्बन है, ओके, जो 5th नंबर कार्बन है शुगर के अंदर, वो किसको अटैच है? सो देयर इज द अटैचमेंट ऑफ अ फॉस्फेट. So phosphoric acid is also called as a phosphate when in chemical combination. जब ये chemical combination में रहेगा तो ये phosphate group यहाँ पर attach. And you can see that the first 1 number carbon, okay, ये जो sugar है, sugar के first 1 number carbon पे किसका attach है? Nitrogen base का. Here there is a adenine, ऐसे करके cytosine, guanine, thymine और ऐसे अलग अलग जो भी है 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस डीएनए में होते हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन एंड थाइमिन. नाउ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस, these are nitrogen containing organic ring compound. Now the next part, now that nitrogen base in DNA is different and the nitrogen base in RNA is different, only one is different, 3 are the same. Okay, DNA और RNA दोनों के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है, तो दोनों के अंदर सिमिलर वाले नाइट्रोजन बेस कौन से है? तो एडेनाइन एंड गुआनाइन एंड साइटोसिन. ओके, एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ये तीनों डीएनए जो भी है, ये तीनों जो नाइट्रोजन बेस है ये डीएनए में भी प्रेजेंट है और आरएनए. बट इन डीएनए, ओके, इन डीएनए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एंड इन आरएनए देयर इज द, इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए के अंदर क्या है? यूरेसिल प्रेजेंट. सो दैट वाज द डिफरेंस, और तो दोनों भी सिमिलर. नाउ द पायरिमिडिन बेस, प्रिंसिपली bases nitrogen base in the DNA and RNA. It is of 2 types. Now which are those? The pyrimidine base. Now what's the meaning of pyrimidine base? You can see that the purine or pyridine base, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो now you can see that the structure, pyrimidine जो बेस है इसके अंदर जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, this was a single ring structure that is monocyclic, and when you see the प्यूरिन, सो प्यूरिन के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट वही पार्ट, पायरिमिडिन बेसेस. पायरिमिडिन आर सिंगल रिंग, व्हिच यू कैन सी इन दिस पिक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, तीनों के अंदर सिंगल रिंग का फॉर्मेशन है. सो इट इज अ मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस. साइटोसिन
thymine and uracil are a one type of a pyrimidine base. Then the purine base, you can see the first one upper side में जो दिया है, so that was adenine and guanine. Now the purine base, purine are double ring dicyclic nitrogen bases, that is adenine and guanine. Purine के अंदर कौन सा है, adenine और guanine, और प्यूरिन के अंदर एडिनाइन एंड गुआनाइन, ऐसे दो नाइट्रोजन बेस है जिनका स्ट्रक्चर कैसे है, डाइसाइक्लिक है, यानी कि ये रिंग के अंदर डबल रिंग का फॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज चारगॉफ्स रूल, दैट वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट नेम दैट इज एरविन चारगॉफ. तो उसके हिसाब से उस रूल को नेम किया. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? Erwin Chargaff in 1950 established the relative amount of 4 nitrogen bases. इन्होंने क्या किया, जो एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनाइन है डीएनए, इनके अंदर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, इनका नंबर चेक आउट. When he studied that, he observed that. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो, he observed that the pyrimidine and purine are always in equal, okay, or occurs in a equal amount in DNA. मीन्स पायरिमिडीन और प्यूरिन जो भी बेस है, पायरिमिडीन यानी कौन से, थाइमिन एंड साइटोसिन जो डीएनए में होते हैं, और आरएनए के अंदर एडेनाइन, गुआनाइन, प्यूरिन होता है. सो किसी भी डीएनए, कोई भी डीएनए स्ट्रैंड लो, इसके अंदर आपको प्यूरिन एंड पायरिडिन का जो रेशियो है ये हमको सिमिलर ही मिलेगा, मीन्स 1:1 मिलेगा. So that was the invention of the scientist, that is called it as a Chargaff. You can see also here, okay, you can see that. अब जैसे मैंने ये छोटा सा एक डीएनए का स्टैंड, ओके, अब देखो, अब इसके अंदर हम लोग चेक आउट करते हैं. You can see that A and C, okay, that A and C, okay, you can see that यहाँ पर अगर हम लोग चेकआउट करेंगे प्यूरिन वाला रेश, सो प्यूरिन के अंदर क्या आएगा, एडेनाइन एंड गुआनाइन. यू कैन सी दैट A and G दोनों का काउंट करो कितना है, so you can see that the blue color, A1, G2, then 3, 4 and 5, प्लस ये वाले लाइन में 6, 7, 8, 9. मीन्स जो प्यूरिन है, ये टोटल जो डीएनए है, इसके अंदर प्यूरिन कितना है, तो प्यूरिन हो गया 9. नाउ वी विल काउंट दैट अ पायरिड. अब हम लोग पायरिडिन को काउंट करके देखते हैं उसका कितना. पायरिडिन के अंदर हमको क्या काउंट करना है, थाइमिन एंड साइटोसिन. नाउ द सी टी टी यानी कि 1 2 3 4 डन. अब ये स्टैंड है. टी सी यानी कि हो गया ये 4 के बाद 5, दिस वन इज 6, देन 7 8 9. मीन्स प्यूरिन भी 9 आया और पायरिडिन भी कितना आया है, 9. सो 9/9 इज इक्वल टू 1. सो प्यूरिन एंड पायरिडिन रेशियो इन डीएनए इट इज ऑलवेज सिमिलर. वो रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर, यानी कि हमको मिल जाएगा आंसर 1. ओके, सो दैट वाज द रूल, दैट इज कॉल्ड इट एज द चारगॉफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट, they also found that the base ratio, that is A and T, adenine and thymine upon G plus C may vary in a DNA of different group of animals. यानी कि हमने अलग अलग एनिमल्स के अंदर A plus T, देखो A के अपोजिट में हमेशा थाइमिन होता है और G के अपोजिट में. तो अगर हमने A and C, ओके, A and ओके, एडेनाइन और थाइमिन ये दोनों का काउंटिंग किया और प्लस G and C इन दोनों का काउंटिंग किया, तो ये अलग अलग एनिमल्स के अंदर इसका डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर ये रेशियो चेंज हो जाए. बट इफ द स्पीसीज इज सिमिलर, अगर कोई स्पीसीज सिमिलर है तो यहाँ पर ये कांस्टेंट. तो देखो ये भी दिया है, दैट इज एडेनाइन के अपोजिट में जो थाइमिन है और गुआनाइन के अपोजिट में साइटोसिन है, इन दोनों का प्लस अगर हमने किया A plus T और G plus T का रेशियो चेक किया, तो सिमिलर स्पीसीज में ये रेशियो हमको सिमिलर मिलेगा. और एनिमल्स अगर चेंज हो रहे हैं, यानी कि स्पीसीज चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज. और प्लस इसके साथ हमने क्या देखा, डीएनए के अंदर प्यूरिन और पायरिडिन का जो रेशियो है ये 1:1 ही होता है, दैट इज 1 आता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नाउ you can see in this structure also, DNA is a very long chain made up of alternate sugar and phosphate.
यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सो डीएनए के अंदर हमको शुगर एंड फॉस्फेट, यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, यू कैन सी दैट दिस वन इज स्ट्रक्चर, सिर्फ ये एक स्टैंड को चेक। यहाँ पर क्या है? फॉस्फेट देन शुगर, phosphate, sugar, phosphate, sugar means a DNA is a long chain and there is a composition of a phosphate and sugar alternately क्या होता है? present. The sugar is always deoxyribose. DNA के अंदर जो शुगर होता है पेंटो शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज है and always joined with a phosphate in the same way. और ये हमेशा देखो इसका जो भी अटैचमेंट है, ये शुगर का फिफ्थ वाला कार्बन किसको अटैच है? फॉस्फेट को, और फिर ये फिर उससे फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड. नाउ इट इज ऑलवेज जॉइंड विद द फॉस्फेट इन द सेम वे सो दैट द लॉन्ग चेन इज परफेक्टली रेगुलर. इसके वजह से जो भी चेन फॉर्म होगा लॉन्ग, वो परफेक्टली रेगुलर. Repeating the same phosphate sugar sequence over and over again. You can see in this picture also. यहाँ phosphate sugar ऐसे करके डीएनए में क्या होता है? बोथ द स्टैंड. यहाँ पर भी देखो वैसे ही है, phosphate sugar ऐसे ही आपको सीक्वेंस पूरा का पूरा मिलता है. Now the next part. Each sugar of a sugar phosphate chain has a base attached to it and the base is not always the same. This unit which consists of a sugar phosphate and a base is called it as a nucleotide. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि जो पेंटो शुगर होता है, पेंटो शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन को अटैचमेंट होता है नाइट्रोजन. अब जो नाइट्रोजन बेस है हमेशा सेम रहेंगे क्या ये न्यूक्लियोटाइड में? तो देखो क्या बोला है, ये जो पेंटो शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच है नाइट्रोजन बेस और फिफ्थ वाले कार्बन पे किसका अटैचमेंट है? फॉस्फेट. बट जो और इसके वजह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड. बट न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट एंड शुगर जो मॉलिक्यूल है ये तो हमेशा सिमिलर रहेगा, ये हमेशा इक्वल ही रहेगा. बट व्हेन यू सी दैट नाइट्रोजन बेस, ओके, यू कैन सी दैट द नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमेशा चेंज होगा. जैसे कि ये वाले न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है, तो सेकेंड वाले में थाइमिन है, थर्ड वाले में ग्वानाइन है और फोर्थ वाले में एडेनाइन. So each and every type of nucleotide, there is always a change of which group? Nitrogen base. Nitrogen base हमेशा क्या होता है? चेंज होता है. बट शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होगा. तो वो एक पार्ट यहाँ पे. Now the next part, nucleoside. Now what's the meaning of nucleoside and what's the meaning of nucleotide? दोनों में डिफरेंस. Nucleoside and nucleotide दोनों में डिफरेंस. Now you can see that when that पेंटो शुगर को फर्स्ट वाले कार्बन को किसका अटैचमेंट है? नाइट्रोजन बेस. So when any type of nitrogen base, when it is attached to a pentose sugar on a first carbon, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जब सिर्फ आएगा, मतलब ये वाला जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है ये एब्सेंट है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस जब शुगर को अटैच होगा तो उससे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दिस इज कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियोसाइड. और प्लस फिफ्थ वाले कार्बन पे अगर फॉस्फेट आ गया तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड. So nucleoside is a smaller word and nucleotide is bigger. न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट रहेगा, फॉस्फेट का अटैचमेंट वहां नहीं हुआ. So that is a difference between that nucleotide and nucleoside. तो वही पॉइंट यहाँ दिया है, नाइट्रोजन बेस एंड द शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड. यानी कि फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहा तो उसको हमको बोलना है न्यूक्लियोसाइड. Thus, nucleoside does not contain phosphate. इसीलिए न्यूक्लियोसाइड में हमको फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा. 4 type of nucleotide are found in DNA. So on the basis of nitrogen base, nucleotide 4 type है. So which are those? Adenine वाला न्यूक्लियोटाइड, guanine वाला न्यूक्लियोटाइड, cytosine वाला न्यूक्लियोटाइड and the fourth one that is a thymine वाला. So DNA के अंदर नाइट्रोजन बेस 4 है, so 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन. Now thus nucleoside does not contain a phosphate group. 4 type of nucleoside are found in DNA molecule. Okay, so DNA के अंदर जो भी है न्यूक्लियोसाइड जो है ये 4, या तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 टाइप. Now
In a nucleoside, nitrogen base is attached to first carbon. You can see in this picture, जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर कहाँ पर अटैच है, तो ये पेंटो शुगर के यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन वाला जो कार्बन है वहां पर किसका अटैचमेंट है, नाइट्रोजन बेस। एंड इसके अपोजिट में फॉस्फेट वाला ग्रुप कहाँ अटैच है, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर द फॉस्फेट इज अटैच टू 5 कार्बन ऑफ द शुगर। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है शुगर के, और जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फिफ्थ वाले कार्बन पे अटैच होता है, दैट इज द शुगर। सो दैट इज अबाउट ये वाले टॉपिक। Now the next one characteristic, a single stranded, okay, a single strand of DNA consists of several thousands of nucleotides, one above the other. Okay, अगर हमने सिर्फ सिंगल स्टैंड लिया डीएनए का, यू कैन सी दैट दिस वन इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पर डबल स्टैंड नहीं। तो इन दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर देयर। अगर मैंने सिंगल स्टैंड भी ले लिया तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं these are thousands or more than thousands भी हो सकते। The phosphate group of lower nucleotide attached with the fifth carbon atom of deoxyribose sugar to form a phosphodiester bond with that of a third carbon atom of deoxyribose sugar of nucleotide placed just above it. Now you can see in this picture, जैसे कि अगर हम लोग ये वाला लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यू कैन सी दैट दिस वन इज डिफरेंट कलर, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है और दिस वन इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियो जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ, आई थिंक आई गेट द कॉल। ओके, सो आई थिंक यू गेट माय वॉइस, आपको मेरा आवाज आ रहा होगा। so you can see that you can see that this one, ये एक जो सिंगल कलर दिया है, this one is a one nucleotide and the second one ये जो ये वाला है ये एक न्यूक्लियोटाइड। now what's the difference between that, देखो जो ये वाला नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसको ऑलरेडी फॉस्फेट वाला ग्रुप कहाँ पर अटैच है, इसके फिफ्थ वाले का। सो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, इसके थर्ड वाले कार्बन पे जाके फिर से एक ईस्टर का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मींस न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ईस्टर बॉन्ड करके, और ये फिफ्थ वाले कार्बन पे ऑलरेडी होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक पहले वाले का यानी कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका फिफ्थ वाले के पास जो फॉस्फेट है ये उसके ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसके थर्ड वाले कार्बन से अटैचमेंट फॉर्म करेगा। मींस ऑलरेडी दे हैव अ ईस्टर बॉन्ड और फिर ऐसे करके और एक ईस्टर बॉन्ड यानी कि फॉस्फेट के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इन बिटवीन अ टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, फॉस्फेट का बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये टू हो जाता है, इसीलिए ये बॉन्ड को नेम दिया है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो बोथ द न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड टू इट, ये दोनों एक दूसरे से जब अटैचमेंट होगा तो उससे जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, सो यही पॉइंट दिया है देखो। तो ये ऊपर वाला जो है इसका थर्ड वाला कार्बन एंड जो नीचे वाला है इसके फिफ्थ कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट था, वो यहाँ पे अटैचमेंट फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर, मीन दिस वन इज वन ईस्टर, दिस वन इज सेकंड, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दो न्यूक्लियोटाइड एक में को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, single chain of polynucleotide of DNA consists of one end with a sugar molecule not connected with another nucleotide having a C3 carbon not connected to phosphate group. Similarly, the other end having a C5 of the sugar is not connected with any more phosphate. जिससे कि अगर मैंने बोल दिया देखो ये एक स्टैंड है, यू कैन सी दैट दिस वन इज सिंगल स्टैंड है, ऐसे समझो कि हम लोग सिर्फ इतना ही स्टैंड के बारे में स्टडी करें। अब यहाँ पर डीएनए पूरा का पूरा सर्कल तो नहीं है, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। सो अल्टीमेटली ये वाला, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया ये न्यूक्लियोटाइड, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये फिफ्थ वाला जो कार्बन है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप
ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे अटैच है क्या? नहीं है, यानी कि यहाँ पर फिफ्थ वाला जो कार्बन है ये फ्री है। उसके ही अपोजिट में ये वाला जो स्टैंड है इसके अपोजिट में जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका फिफ्थ वाला कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है, बट थर्ड वाला कार्बन फ्री है। तो जहां पर भी ऐसा ग्रुप फ्री है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज C3 एंड C5। जैसे कि यहाँ पर C3 वाला ग्रुप फ्री है, सो दिस एंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज C3 end. Okay, you can see that this one is called as a 3 end, या तो इसको हम लोग C3 यानी कार्बन 3 एंड बोलते, और यहाँ पर फिफ्थ वाला कार्बन फ्री है, सो दिस इज कॉल्ड एज 5 और C5N. ऑल ऑफ यू क्लियर? डीएनए हैव अ पोलैरिटी, उसको एक नेमिंग होता है, उसको हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पर देखो दिया है दिस टू एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इट इज कॉल्ड एज 3' एंड 5' एंड रिस्पेक्टिव। यानी कि यहाँ पर जो 3 वाला कार्बन फ्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3' एंड, और यहाँ पर फिफ्थ वाला फ्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे 5'। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो डीएनए इज कॉल्ड एज 3। अगर डीएनए के अंदर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो 3' एंड 5' एंड, तो डीएनए देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि वहां न्यूक्लियोटाइड जो शुगर बॉन्ड है उसके अंदर थर्ड वाला कार्बन कहाँ फ्री है, तो यहाँ पे फ्री है, ये अटैच नहीं है, तो इसको बोलना है C3 एंड और 3'। यहाँ पर फिफ्थ वाला फ्री है, फिफ्थ वाला अटैच नहीं है, तो इसको बोलना है 5' और C5। So DNA have that end. Now the next part. Next part in the structure of DNA, the single polynucleotide strand of DNA is not a straight but helical in shape. पूरा का पूरा स्ट्रेट नहीं है, तो यू कैन सी दैट ये थ्रेड के अंदर जो थ्रेड एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, पैरेलल में अटैच होते हैं, तो वैसे ये जो भी स्टैंड है वो कैसे रहेगा, हेलिकल शेप, which you can see here in the picture. Now the next part. The DNA molecule consists of such a two helical polynucleotide chain which are complementary to each other. Okay? दो स्टैंड जो होते हैं तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे कि यहाँ पर ग्वानाइन है तो इसके अपोजिट यहाँ साइटोसिन, यहाँ एडेनाइन है तो इसका अपोजिट यहाँ पर थायमिन रहेगा। मीन्स ए के अपोजिट के सी के अपोजिट में, और दोनों भी स्टैंड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि एक साइड अगर यहाँ 3' है तो यहाँ पर 5' रहेगा, यहाँ पर 5' है तो यहाँ 3'। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, बोथ द स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। The two complementary polynucleotide chain of DNA are held together by weak hydrogen bond. तो दो स्टैंड के बीच में यू कैन सी दैट ये जो नाइट्रोजन बेस होता है, इन दोनों नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, एंड बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्ड दिस टू डीएनए आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो दोनों भी स्टैंड जो होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट. Adenine is always paired with the thymine and guanine is with the cytosine. You can see in this picture also. जो adenine है ये हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ। जो guanine है ये हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ। या तो वाइस वर्सा, थाइमिन is always paired with the adenine and cytosine is always paired with the guanine. So वो एक पॉइंट दिया है कि पेयरिंग कैसे रहेगा। दैन पेयरिंग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बट कुछ में डबल बॉन्ड होते हैं और कुछ में 3। नाउ एडेनाइन एंड थाइमिन पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो एडेनाइन है और थाइमिन इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, whereas if you see the guanine and cytosine तो इसके बीच में क्या है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यानी कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। Thus, if the sequence of bases of polynucleotide chain is known, that of the other can be determined. यानी कि इसके अंदर देखो, अगर मैंने आपको एक स्टैंड का सीक्वेंस बता दिया ACTG, तो आपको दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस बताने आना चाहिए, बिकॉज हमको पता है कि A के अपोजिट में T रहेगा, C के अपोजिट में G रहेगा, G के अपोजिट में C रहेगा। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली भी बताना आ सकता है कि अगर मैंने आपको सिंगल स्टैंड यानी कि इस स्टैंड का बता दिया
तो दूसरा स्टैंड हम लोग ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बेस पेयरिंग जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म पे होता है और वो कंफर्म। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द डीएनए मॉडल। According to Watson and Crick, DNA molecule consists of two strands twisted around each other in the double helix. You can see in this picture, जो दोनों भी स्टैंड एक दूसरे को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि थ्रेड का फॉर्मेशन होता है जो बीकर, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर हेलिकल स्ट्रक्चर में बाइंडिंग करते हैं। तो वैसे ही बोथ द स्टैंड आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ये हेलिकल स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि डबल स्टैंड फॉर्म होता है तो डबल हेलिकल, और जिसको किसने बताया है, साइंटिस्ट वैटसन एंड क्रिक। The two strands of polynucleotide chain are supposed to be opposite direction. So end of one chain having a three lie beside a five. यानी कि अगर हमने देखो यहाँ पर क्या होता है, दोनों भी स्टैंड एक दूसरे को पैरेलल तो होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर हैंड्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, एक जगह ये साइड दिखा रहा तो दूसरे जगह ये वाला। तो वैसे ही डीएनए में एक स्टैंड, जैसे कि अगर मैंने ये वाला स्टैंड का ये साइड लिया 5 डैश एंड है, तो इसका अपोजिट ये वाला साइड क्या रहेगा, 3 डैश। वैसे ही ये 5 डैश, तो यही स्टैंड जब इस साइड लोगे तो यहाँ 3 डैश आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। सो बोथ द डीएनए स्टैंड आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक के स्टैंड में अगर 5 to 3 है, तो दूसरा वाला वही डायरेक्शन जब हम लोग चेक करेंगे तो वो हमको 3 to 5 डैश। नाउ 1 ton of double helix of a DNA measure about 34 angstrom, यानी कि जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा ना ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो ये एक राउंड के अंदर जो इनका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, so that distance supposed to be 34 angstrom unit. Okay, single, okay, just one time जब वो उसके ऊपर ये करेगा, एंगस्ट्रॉन में बोला है। देखो यहाँ पर, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज करोगे कि सर यहाँ पर राइटिंग में 3.4 नैनोमीटर दिया है, यहाँ एंगस्ट्रॉन दिया। सो एंगस्ट्रॉन और भी स्मॉलर यूनिट है और ये नैनोमीटर और थोड़ा बिगर यूनिट है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। देखो 3.4 नैनोमीटर दिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। It consists of pair nucleotide and a distance between two neighboring pair of nucleotide is 3.4। ये हमने ऑलरेडी देखा कि जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो गैप होता है वो गैप कितना रहेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन, और उसको नैनोमीटर में लिया तो 0.34 नैनोमीटर। एंड द डायमीटर, जो डीएनए स्टैंड है उसका डायमीटर, यानी कि ये जो अगर लेंथ मैंने ऐसे लिया तो वो कितना रहेगा, 20 एंगस्ट्रॉन यूनिट। There are certain organisms like a bacteriophage multiply by 175 and several bacterial viruses which possesses a single standard DNA. So देखो मोस्ट ऑफ तो हमने लिया है कि हम लोग अगर एनिमल्स का, प्लांट का, किसी का भी एग्जांपल ले ले, सो मोस्ट ऑफ सभी के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, बट देयर आर सम बैक्टीरियोफेज एंड वायरसेस जिसके अंदर डीएनए कौन से फॉर्म में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ बैक्टीरियोफेज 174 मल्टीप्लाई बाय 174 का जो एग्जांपल, दैट 174 इज दैट इज जो लेंथ होता है उसके न्यूक्लियोटाइड वगैरह से रिलेट करता है। Now we are starting with 6.2 biomolecules in the cell. In that, D nucleic acid. In last lecture we have cleared a DNA, deoxyribonucleic acid. In today's lecture we will see about a second, that is ribosomal nucleic acid, that is RNA. So RNA is another nucleic acid found in the living organism, and it is a ribose nucleic acid, that is RNA. In most of the organism, it is not found to be hereditary material, but in certain organisms like tobacco mosaic virus, it is a hereditary material. Now, what's the meaning of hereditary material? Those the character. Okay, there are so many characters in our body which is transfer from one organism to their offspring. यानी कि हमारे जनरेशन से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है
for that there is a responsible character, this is called it as a DNA. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है, बट इन सम ऑफ द वायरसेस, ओके, बट इन सम ऑफ द वायरसेस दिस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो प्रेजेंट, यानी कि वहां पर डीएनए नहीं होता, वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करेगा, यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाला जो पार्टिकल उनके बॉडी में जो है वो आरएनए है। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज द एनीथिंग वी कैन टेक, बैक्टीरिया ले लो, या तो फिर हम लोग अगर ले लें प्लांट से, दैन एनिमल से, दैन ऑल द थिंग्स, सो मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव अ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, बट कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। So some example, that is tobacco mosaic virus. This virus is only infected to a plant, that is tobacco plant. So the name is called it as a tobacco mosaic virus. Now the next, like a DNA, ribonucleic acid also consists of polynucleotide chain with a difference that in a consist of single strand. Okay, DNA में हमने क्या लिया था, DNA के अंदर भी polynucleotide chain होता है, means so many nucleotide are join together to form a DNA. वहां पर DNA का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होते हैं तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए। बट डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का स्टैंड होता है इट इज डबल स्टैंड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आरएनए, सो आरएनए के अंदर जो स्टैंड होता है व्हिच वाज अ सिंगल स्टैंडर्ड, व्हिच यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये देखो, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोटाइड है, देन दिस वन इज सेकंड न्यूक्लियोटाइड, this one is third nucleotide. So many nucleotide are joined together. This is called it as a polynucleotide strand. But ये strand कैसे हैं? So this strand is single stranded. RNA के अंदर single stranded होता है और DNA के अंदर double stranded. So that was a main difference. और उसको छोड़ के यहाँ पर शुगर में कुछ चेंज है, ओके, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंज है. So that we will see. In some cases, example Rio virus and wound tumor virus, RNA is a double strand. So most of the organism में तो RNA single stranded ही होता है. If I'm taking a plant, if I'm taking animals, then अगर हमने fungi का example ले लिया, then हमने bacteria का example ले लिया, so most of organism के अंदर जो RNA होता है ये single stranded ही होता है. But there are some exception. Exception किसके लिए है, तो Rio virus and वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होता है. नाउ द स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए हैव राइबो शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी शुगर as in a case of DNA. What's the main difference between the sugar between the DNA and RNA? DNA और RNA के शुगर में क्या डिफरेंस है, तो DNA का शुगर जो भी है डीऑक्सी राइबो नेम में है, देन RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यहाँ पर जो शुगर है वो डीएनए से डिफरेंस है, यहाँ पर जो शुगर है दैट इज राइबो शुगर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द शुगर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस. इन अ केस ऑफ आरएनए, यूरेसिल सब्स्टिट्यूट ऑफ थायमिन, ओके, डीएनए में हमने क्या लिया था, एसीटीजी, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन एंड थायमिन. आरएनए के अंदर साइटोसिन भी है, ग्वानाइन भी है, एडेनाइन भी है, बट इंस्टेड ऑफ थायमिन आरएनए के अंदर क्या है, यूरेसिल है. सो इन केस ऑफ आरएनए, यूरेसिल सब्स्टिट्यूट थायमिन ऑफ डीएनए. डीएनए के अंदर जहां पर थायमिन था वहां पर आरएनए के अंदर क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा. वो एक डिफरेंस यहाँ पर. नाउ प्यूरीन पायरिडीन इक्वालिटी इज नॉट फाउंड इन आरएनए मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड. देखो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर हमने चारगॉफ्स रूल में क्या देखा था कि जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पायरिडीन होते हैं, यानी कि प्यूरिन अपॉन पायरिडीन का जब हम लोग रेशो लेंगे तो वो हमको 1:1 मिलेगा. बट वो वहां पर ऐसे क्यों मिलता है, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए के एक स्टैंड में अगर प्यूरिन का बेस है तो उसका अपोजिट दूसरे स्टैंड में पायरिडीन बेस होता है. मतलब जितना नंबर ऑफ प्यूरिन रहेगा उतना ही पायरिडीन पे रहेगा. बट जो आरएनए का स्ट्रक्चर अगर हमने लिया तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है. सो अल्टीमेटली आरएनए में अगर एक 10 बेस पेयर है, ओके 10 है,
सो 10 बेस पेयर अगर रहेंगे तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे स्टैंड में 5 प्यूरिन और 5 पायरिडिन। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड ना होने के कारण जो आरएनए मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्यूरिन एंड पायरिडिन का इक्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। दैट इज रेशियो जो 1:1 है डीएनए में वो यहाँ पे नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज सिंगल स्टैंड। नाउ द नेक्स्ट, RNA is usually found folded upon itself in certain region or entirely. This folding help in stability of the RNA. देखो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये फ्री नहीं होते। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होने के कारण एक जो नाइट्रोजन बेस है वो दूसरे नाइट्रोजन बेस को हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच, बट आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड। सो अल्टीमेटली क्या होता है, आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है दीज आर फ्री। सो अल्टीमेटली आरएनए के अंदर क्या होगा, जो उसके नाइट्रोजन बेस है वो उसी सिंगल स्टैंडर्ड के दूसरे जो नाइट्रोजन बेस से अगर कंप्लीमेंट्री है यानी कि अपोजिट है, यानी कि सपोज करो कि ये वाला अगर न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट वाला ए है और फिर यहाँ वाला जो ये है ये अगर यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, मतलब कि कंप्लीमेंट्री जहां पर भी अपोजिट वाला आ गया तो वो उसको ज्वाइन हो जाए। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल शो यू दैट, यू कैन सी दैट। ओके, अब सिंगल स्टैंडर्ड होने के कारण क्या हुआ, तो आरएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड है अगर वहां पर कहीं पर भी अगर वो मैच हो रहा है, बेस पेयर अपोजिट है, तो अल्टीमेटली ये बेस पेयर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके स्टिक हो जाए, और इसके वजह से आरएनए को एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड हो रहा है और स्टेबिलिटी भी मिलता है। ओके, सो वो एक पॉइंट इन्होंने दिया है उस पॉइंट पे। नाउ फिर से हम लोग उसी पॉइंट पे जाते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, most of the RNA polynucleotide chain start either with adenine or guanine, means starting point। किसी भी आरएनए का मोस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा रहेगा, तो आइदर ये तो एडेनाइन होगा या तो ग्वानाइन, ये दोनों में से कोई भी एक ज्यादातर थाइम जो ग्वानाइन है या तो फिर एडेनाइन, ए या तो जी रहेगा। साइटोसिन और यूरेसिल आने के चांसेस स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत कम होते हैं, एडेनाइन या तो ग्वानाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप ऑफ आरएनए, ribonucleic acid। There are three type of cellular RNA have been distinguished. Okay, there are three type of cellular. Now what's the meaning of cellular? So each and every plant cell and animal cell, अगर हमने कोई भी plant cell या animal cell ले लिया तो cellular RNA यानी कि सेल के अंदर जो अलग अलग टाइप के RNA है, these have a three different type. So हमारे सेल के अंदर 3 अलग अलग टाइप के RNA होते हैं. So which are those? So the first one type is messenger RNA. So now we are starting with the type of RNA. In that, the first type of RNA, that is messenger RNA, and it is also called it as a mRNA. Short form में इसको mRNA भी बोलना है, and also call it as a template RNA. In short, what's the meaning of messenger RNA? इसको messenger RNA क्यों बोला है? So we know that in our body there is a protein formation. Now how the protein is formed? So हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमारा न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बनेगा आरएनए, दैट इज एमआरएनए, और उसी एमआरएनए के अंदर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनाना है उसका मैसेज होता है। सो दिस आरएनए इज कॉल्ड इट एज अ मैसेंजर आरएनए, और इसको ही टेम्पलेट आरएनए, बिकॉज इसको ही ये राइबोसोम जो सेकेंड राइबोसोमल आरएनए है ये इसको रीड करेगा और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ला के वहां अटैच कर दिया जाएगा और फिर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। सो मैसेंजर आरएनए के पास कौन सा प्रोटीन फॉर्म करना है उसका मैसेज होता है। सो दिस इज कॉल्ड इट एज द एमआरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। Now the second type of RNA is ribosomal RNA, RR. Now those RNA which are used in the formation of ribosome. Okay, हमने देखा था इसके पहले हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमने टॉपिक में राइबोसोम देखे थे, और यूकैरियोट के अंदर और प्रोकैरियोट के अंदर 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं ना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राइबोसोम? तो यही राइबोसोम ये मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा, फिर वो रीडिंग करने के लिए जो राइबोसोम लगेगा
दिस राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए जो आरएनए लगता है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ राइबोसोमल आरएनए। यू कैन सी दैट राइबोसोम के अंदर क्या है, ये आरएनए प्रेजेंट। नाउ एंड द थर्ड वन टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड इट एज अ टी-आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड सॉल्युबल आरएनए। अभी ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला है, तो ये क्या करते हैं, हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, मीन्स इफ आई एम ईटिंग एग, सो एग में अल्बुमिन प्रोटीन है, तो मेरे बॉडी में जाके उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसका डाइजेशन होने के बाद अमीनो एसिड बन गया। अब ये अमीनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में चले गए। अब अमीनो एसिड को ज्वाइन करते ही क्या बनेगा, प्रोटीन। वो मैसेज किसके पास है, एमआरएनए के पास। इसको रीड कौन कर सकता है, राइबोसोम। बट ये रीड करते टाइम ये अमीनो एसिड खुद से तो यहाँ नहीं आ सकते हैं एमआरएनए के पास, तो इसको लाने का काम यानी कि ट्रांसफर करने का काम होता है टीआरएनए का। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर आरएनए। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर, देखो तीनों भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन से रिलेटेड। देन टीआरएनए को ही दूसरा नाम है सॉल्यूबल आरएनए, बिकॉज दे आर टू मच सॉल्यूबल। जैसे कि इफ आई गिव यू अ सॉल्ट और वाटर दिया, और वाटर के अंदर अगर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया, फिर मैंने आपको बोला कि इसको मुझे सेपरेट करके दो, पॉसिबल है, नहीं है। तो वैसे ही दैट टीआरएनए इज टू मच स्मॉल, इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, सो वी कांट सेपरेट दैट। नॉर्मली क्या होता है कि अगर स्मॉलर थिंग है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऑल यू नो दैट सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, आपने प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होंगी तो आपको वो मशीन देखने मिलेगा केमिस्ट्री लैब। तो ये क्या करता है, ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको जोर से घुमाएगा और जिसके वजह से सेपरेशन। बट इनका साइज इतना स्मॉल होता है ना, ये इतने सॉल्युबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, इतने स्मॉल होते हैं कि वो सेपरेट ही नहीं होते। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्युबल आरएनए, जो कि सबसे स्मॉलर है। सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, और तीनों भी ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प होते हैं। Now the first one type, that is mRNA. As I already said, what's the meaning of mRNA? Messenger RNA carries the genetic information for arranging amino acid in definite. साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी अमीनो एसिड है, बट उसको कैसे अरेंज करना, ओके। जैसे कि एक बिल्डिंग बना है, एक छोटा सा चॉल बना, चॉल के अंदर भी हमने क्या किया, तो वी हैव अरेंज दैट ब्रिक्स। बिल्डिंग के अंदर भी, टावर के अंदर भी ब्रिक्स से अरेंज किया, बट उसको कैसे अरेंज करना है, ये मैसेज किसके पास है, mRNA के पास है। सो दिस इज कॉल्ड एज एम। नाउ mRNA is a linear polynucleotide. You can see that mRNA कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, बट ये कैसे होते हैं, लिनियर होते हैं। ये just ओके, सो हम लोग के देखो ये सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज mRNA इज अ लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये जस्ट सिंपली लीनियरली अरेंज होता है और स्ट्रेट अरेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर यहाँ बाइंडिंग हो गया तो फिर ये रीड नहीं कर सकता है राइबोसोम। सो ये हमेशा लीनियर फॉर्म में ही रहेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मोर देन टू दैट। इट अकाउंट फॉर 3% ऑफ द सेलुलर आरएनए। सेल के अंदर जितने भी आरएनए हैं, कौन से आरएनए हैं, तो सेल के अंदर mRNA है, राइबोसोमल आरएनए है और टीआरएनए है। इसके अंदर इसका जो परसेंटेज है ये 3%, बहुत ही कम है। नाउ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज सेवरल मिलियन, ये बहुत ही बीगर होता है। तो तीनों भी आरएनए के अंदर, एमआरएनए, आरएनए और थर्ड वाला जो हमने देखा था दैट इज टीआरएनए, ये तीनों के अंदर जो mRNA है इसका साइज बहुत बीगर है। सो rRNA, mRNA is a molecular weight is several million, मॉलिक्यूलर वेट बिगर होता है। मॉलिक्यूलर वेट मींस इसको हम लोग वेट नहीं कर सकते, वजन नहीं कर सकते। जो भी हमारे यहाँ जो हम लोग एप्पल्स वगैरह जैसे वजन करते हैं किलोग्राम में, तो इसका वेट बहुत स्मॉल होता है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट में लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा बिगर है तीनों से। mRNA मॉलिक्यूल कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। तो ये क्या है, mRNA के अंदर कोई जो मॉलिक्यूल है, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, किसी एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, अब ये इतना बड़ा mRNA है, तो ये कितने प्रोटीन के इंफॉर्मेशन, अगर वो एटलीस्ट सिंगल प्रोटीन के इंफॉर्मेशन का अगर मैसेज कैरी कर रहा है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। मतलब mRNA के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन होते हैं।
सपोज करो कि ये इतना हाफ रीजन एक प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन. सो एमआरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग अ कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जहां पर पूरा का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन का मैसेज है. दिस रीजन इज कॉल्ड इट एज अ सिस्ट्रॉन. साइज ऑफ एमआरएनए इज रिलेटेड टू साइज ऑफ मैसेज इट कंटेन. वो कौन से टाइप का प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन का साइज बिगर होता है या स्मॉलर होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है एमआरएनए का साइज. तो एमआरएनए साइज इज वेरी, वो कौन सा मैसेज दे रहा है प्रोटीन फॉर्मेशन के कौन से टाइप के, तो उसके ऊपर उसका साइज होता है. सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बिगिंस एट द 5 प्राइम एंड टर्मिनेट एट 3 प्राइम. स्टार्टिंग पॉइंट जो है एमआरएनए का, ये क्या होता है एमआरएनए, मतलब ये इनिशिएशन जो कोडॉन है ना, यहाँ पे हमारा राइबोसोमल आरएनए जो है ये आके अटैच होगा और फिर ये इसको रीड करेगा. और ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5 प्राइम बेंड, और टर्मिनल स्टॉप पॉइंट क्या है इसका 3 डैश. यानी कि मैंने बोला चर्चगेट टू डहानु ट्रेन है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है चर्चगेट और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है डहानु. तो वैसे यहाँ पर क्या है 5 प्राइम हमेशा आरएनए का एमआरएनए का क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और 3 प्राइम आई थिंक यू नो दैट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखा था. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 5 प्राइम, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ वाला जो कार्बन है वो फॉस्फेट को अटैच है, बट वो फॉस्फेट किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं है, तो वो पार्ट यानी 5. और जहां पर लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका थर्ड वाला कार्बन अगर किसी फॉस्फेट को अटैच नहीं है तो उसको बोलना है 3 डैश. ओके, सो दैट वाज द डैश. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the second type of RNA, that is ribosomal RNA, short form में RR. As I already said, what's the meaning of ribosomal RNA? So the RNA which will helping in the formation of राइबोसोम, जो राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए हेल्प है. और राइबोसोम किसके लिए होते हैं, तो अभी जो हमने एमआरएनए देखा ना उसको ये राइबोसोम रीड करता है. ओके, तो उस राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए जो आरएनए लगेगा दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए. इसका नंबर सबसे ज्यादा होता है. नाउ rRNA फॉर्म अ 50 to 60% पार्ट ऑफ द राइबोसोम. राइबोसोम के अंदर इसका पार्ट कितना है 50, मतलब राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ प्रोटीन यानी कि जो rRNA है यही होता है, ऐसा है क्या, नहीं. तो rRNA को छोड़ के दूसरे भी पार्ट है, बट उस राइबोसोम के अंदर rRNA का कॉन्स्टिट्यूशन 50 से लेके 60% होता है. एंड सेल के अंदर इसका कंपोनेंट देखो सबसे ज्यादा. So it accounts for 80 to 90% of the cellular RNA. सेल के अंदर इसका constitution 80 to 90%. It is synthesized in nucleus. इसका synthesize कहाँ पर होगा, so now it is formed in the nucleus. You know that nucleus, cell having a well developed nucleus, और इसी न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा, और उसी राइबोसोम से होते हुए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वहां से होते हुए ये पहले कहाँ पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसीलिए पहला वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम का फॉर्मेशन. ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. नाउ द नेक्स्ट, the scientist Kurland in 1960 discover a, okay, राइबोसोम का rRNA का डिस्कवरी 1966 में 1960 में ये साइंटिस्ट ने किया है. It has coil here due to the interchain complementary base pair. You can see that जो rRNA का स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये अगर कंप्लीमेंट्री रहे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे अटैच हो जाएगा. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि जहां पर भी कंप्लीमेंट्री मिल गया मतलब कि ए के अपोजिट में यू है, सी के अपोजिट में जी है, तो वो क्या हो जाएगा पार्ट अटैच हो जाएगा. सो वही कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के वजह से ये अटैच हो. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ आरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और सॉल्युबल आरएनए. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? So tRNA molecule are much smaller, constituting about 70 to 80% of the nucleotide. इसका साइज बहुत ही स्मॉल है और ये ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो 70 से लेके 80. As I already say, why it is called as a soluble RNA? Because इसका साइज बहुत स्मॉल होता है. So you can see that न्यूक्लियोटाइड का नंबर इसमें बहुत ही लो होता है. So इसीलिए इसको soluble RNA, because हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते. So now
मीन्स नॉर्मली जल्दी सेपरेट नहीं हो सकता, ऐसे सेपरेशन होगा बट टाइम ना. इट हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड, यू कैन सी दैट ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, बट नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस आफ्टर अपेयरिंग इट शेप अ क्लोवर लीफ मॉडल. यू कैन सी दैट ये जो मॉडल है यहाँ पर भी बेस पेयरिंग होता है, तो बेस पेयरिंग होने के बाद ये कुछ ये टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. This is called it as a clover leaf model, which is given by scientist Hawley in 1960. इसको छोड़ के एक और दूसरा मॉडल है, ये जैसे दिख रहा है वैसे एक हेयर पिन मॉडल. हेयर पिन जो भी होता है, ओके, तो लाइक यू शेप में वैसे टाइप का हेयर पिन मॉडल भी है. Now, each tRNA can pick up a particular amino acid. Now, what the function of this tRNA? तो tRNA ट्रांसफर करता, किसको ट्रांसफर करेगा? अमीनो एसिड. सो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी अमीनो एसिड है, तो हर एक tRNA अलग अलग टाइप के, मतलब ये एंटीकोडॉन पे रहता है कि यहाँ कौन सा एंटीकोडॉन है, तो वो उसी अमीनो एसिड को यहाँ अटैच करेगा इसके थर्ड प्राइम एंड पे, और फिर ये इस अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन के टाइम में जो mRNA है वहां पर ले जाके क्या करेगा? सिर्फ ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए इसको नाम दिया है tRNA, दैट इज ट्रांसफर आरएनए. नाउ इसके बारे में और कुछ पॉइंट दिए हैं. tRNA have following four part, that is THU arm, that is dihydroxyuracil loop. Okay, that is D loop, and amino acid recognizing site. Okay, you can see that एक साइड में इसको क्या है? अमीनो एसिड का अटैचमेंट साइड है. देन अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड, ये एक डी लूप दिया है, दैट इज DHU आर्म. देन सेकंड टाइम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड, जहां पर अमीनो एसिड जो हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं वो इसको आके अटैच होते हैं, दैट इज अमीनो एसिड का साइड. एंटीकोडॉन लूप, कोडॉन रिकॉग्नाइजिंग साइड भी जिसको बोला, तो ये क्या है? एंटीकोडॉन. अब ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसके अपोजिट कोडॉन होता है mRNA. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये देखो, अब ये जो है ना, ये mRNA, इसके ऊपर कोडॉन होता है. कोडॉन यानी 3 का ट्रिपलेट का सीक्वेंस. सपोज करो कि यहाँ पर पहला जो सीक्वेंस है ये है A, यहाँ U और ये G. क्या है सीक्वेंस? AUG. तो इसका अपोजिट जो होता है वो किसके पास रहेगा? एंटीकोडॉन के पास. तो एंटीकोडॉन कहाँ पर है? तो यू कैन सी दैट एंटीकोडॉन tRNA के ऊपर. तो अब ये कोई भी tRNA जाके mRNA पे जाके ज्वाइन हो जाएगा क्या? नहीं. तो वहां कौन सा सीक्वेंस है? जैसे कि अब हमने वहां पे सीक्वेंस दिया, पहला वाला था AUG, तो A के अपोजिट में U आना चाहिए, U के अपोजिट में A आना चाहिए और G के अपोजिट में C, यानी कि सीक्वेंस हो गया UAC. तो अगर इस एंटीकोडॉन का सीक्वेंस UAC रहा तो ये वाला जो tRNA है ये इस अमीनो एसिड को जाके वहां पे क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा. मतलब कोई भी अमीनो एसिड जो tRNA है वो किसी भी अमीनो एसिड को mRNA को जाके ट्रांसफर नहीं करेगा, तो उसको रीड करता है राइबोसोम. फिर ये राइबोसोम जब रीड करेगा तो ये tRNA वहां जाएगा. अगर इसका बेस पेयर कोडॉन से, mRNA के कोडॉन से एंटीकोडॉन अगर मैच हो रहा है तभी ये इसको वहां पे जगह देगा, नहीं तो इसको वहां जगह नहीं मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारे tRNA अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एंटीकोडॉन, और हर एक एंटीकोडॉन के अगेंस्ट में यहाँ अमीनो एसिड क्या रहेगा? अलग अलग. सो each tRNA can pick up a particular amino acid, अलग अलग टाइप की वो पिक कर. Now, in an anticodon loop of tRNA, 3 unpaired nucleotides are present called anticodon, which are paired with the codon present on mRNA. So आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा mRNA का स्टैंड. mRNA के ऊपर देखो 3 का सीक्वेंस क्या है? कोडॉन. तो ये कोडॉन का देखो mRNA का सीक्वेंस क्या है? गुआनाइन, एडेनाइन, गुआनाइन. अब G के अपोजिट में क्या होना चाहिए? साइटोसिन. A के अपोजिट में RNA का होना चाहिए यूरेसिल, और G के अपोजिट में RNA पे होना चाहिए साइटोसिन. तो ये एंटीकोडॉन जो है, ये tRNA के पास जो एंटीकोडॉन है ये इस कोडॉन से मैच हो रहा है, तब जाके तो ये यहाँ पे आके पेयरिंग कर देगा. सो जो tRNA है इसके पास होता है एंटीकोडॉन, और जो mRNA होता है उसके पास होता है कोडॉन, और दोनों मैच हो गए तो ये अमीनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए. और फिर ये ट्रांसफर करने के बाद ये tRNA यहाँ से फिर निकल जाएगा, और फिर वो साइटोप्लाज्म में से दूसरे अमीनो एसिड, यही अमीनो एसिड को फिर से अटैच. Specific amino acid is attached at 3 dash end of acceptor.
स्टेम क्लोवर लीफ. यू कैन सी दैट जो टीआरएनए है उसके 3 प्राइम एंड के ऊपर जो भी है अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के स्पेसिफिकली इस एंटीकोडॉन के लिए, इस टीआरएनए के लिए कौन से है, तो वही यहाँ पर क्या होंगे 3' एंड पे इस आरएनए के अटैच होंगे. Okay, now the next part is